Good morning, a very good morning to all. Here this is Hardik Anjas. बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके आज के पार्ट 2 के सेशन में स्टैटिस्टिक्स का जो डेटा हैंडलिंग के एक पार्ट है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्टैटिस्टिक्स डेटा को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाय यूजिंग द पाई चार्ट और अ बार ग्राफ। लेकिन उनके लिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको उनकी जो टर्म्स है वो टर्म्स के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड वो मैंने ईच एंड एवरीथिंग लास्ट सेशन में डिस्कस किया है। अगर वो सेशन आपने नहीं देखा तो सबसे पहले वहाँ पे जाके मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक अटैच कर देता हूँ। सबसे पहले वो देख लीजिए ताकि आज का सेशन काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो जाए। आज हम लोग बहुत सारे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन स्टैटिस्टिकल डेटा के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म्स। सबसे पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा है क्या? द टेबुलर representations of the data is an ideal way of the presenting them in a systematical manner. When these numerical figures are represented pictorial or graphically, they become the more noticeable and easy intelligible, leaving a more lasting effect on the mind of the observer. With the help of these pictures or graphs, data can be compared easily. यानी कि हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से स्टैटिस्टिक डेटा को काफी हद तक अच्छे से समझ सकते हैं। Through these various types of graphs may be drawn. In this chapters, we shall be dealing with the bar graph. That means the bar graph is a pictorial representation of the numerical data in the form of the rectangles of a uniform width and varying the heights. These rectangles are drawn either vertically or horizontally, keeping equal space between them. The height of the column represents the frequency of the corresponding observations. But the main question that is how to draw the bar graph. Am I correct? Let's discuss about the each and every step. The first step, on a graph paper, draw a horizontal line OX that is called the x-axis and the vertical line OY that is called the y-axis. Step 2, mark the points at the equal intervals along the x-axis. Below these points, write the names of the data items whose value are to be plotted. Step 3. Choose the suitable scale. On that scale, determine the heights of the bars for the given numerical values. Step 4. Mark off these heights parallel to the y-axis from the points taken in a step 2. And the last step, that is the fifth one, on the x-axis, draw the bars of the equal width of heights marked in a step 4. The bars should be centered on the points marked on the x-axis, and these bars represent the given numerical data. So these are the 5 steps to represent the bar graph. और अच्छे से ईच एंड एवरी स्टेप्स को डिस्कस करेंगे जब हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए आपको बार ग्राफ की डेफिनेशंस यानी कि क्यों बार ग्राफ हम लोग यूज करते हैं वो एंड उनके स्टेप्स पता होने चाहिए। The next thing, that is the pie chart. In a pie chart, the various observations or components are represented by the sectors of the circle, and whose circle represented the sum of the values of all the components. Clearly, the total angle of the 360 at the center of the circle is divided in the proportions to the values of the components. Thus, we have the central angles for the components. इनकी formulas है the central angles for the components which is equal to the value of component into the 360
upon total values. So that means सेंट्रल एंगल फॉर द कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए हम लोग वैल्यूज जो कंपोनेंट्स की होंगी उनसे 360 का मल्टीप्लाई कर देंगे upon the total values. Sometimes the values of the components are expressed in the percentage forms. In such cases, we have the central angle for the components which is equal to the percentage values of the component into the 360 upon 100. जैसे कि परसेंटेज में अपॉन ईच एंड एवरी टाइम 100 होता था, तो जैसे कि समटाइम्स अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस हो एट दैट टाइम एंगल फाइंड करने के लिए परसेंटेज करेंगे वैल्यूज ऑफ द कंपोनेंट्स का 360 के साथ मल्टीप्लिकेशन अपॉन 100 और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं by using the problems. Let's start with some problems. Let's discuss about the first sum. 100 students from the certain locality use a different modes of the traveling to school as given below. Draw a bar graph. देखो यहाँ पे बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. जैसे कि मैं क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ कि 100 स्टूडेंट्स है जो डिफरेंट मोड से ट्रैवल करके स्कूल पे आ रहे हैं. जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि बस से 32 आ रहे, बाय यूजिंग कार 16, बाय यूजिंग रिक्शा 24, बाइसिकल 20 एंड बाय यूजिंग वॉकिंग 8. तो सिंपल, जैसे कि हम लोगों ने स्टेप्स देखे थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ओ एक्स पे एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे चार्ट को और ओ वाई पे वाई एक्सिस करेंगे और वाई एक्सिस पे मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ एंड एक्स एक्सिस पे मोड ऑफ ट्रैवल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 32 स्टूडेंट्स बस से आ रहे, यानी कि यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है नंबर्स 4, 8, 12 से लेके 40 तक और मुझे पता है कि 32 स्टूडेंट्स जो है वो आ रहे बस से. तो दैट मीन्स बार ग्राफ में मैं बस को 32 तक यहाँ तक करता हूँ. एज आई नो दैट कि 16 स्टूडेंट्स है बाय यूजिंग कार से आ रहे, यानी कि मैं यहाँ पे 16 पे बाय यूजिंग कार को कर रहा हूँ, 24 बाय यूजिंग रिक्शा, 20 बाइसिकल और नंबर ऑफ 8 स्टूडेंट्स बाय यूजिंग वॉक आ रहे. सो बहुत ही सिंपली हम लोग इसको बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर दिया और एक्स एक्सिस पे मोड ऑफ ट्रैवल को रिप्रेजेंट कर दिया. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Mr. Mirza's monthly income, that is rupees 7,200. He spends rupees 1,800 on a rent, 2,700 on a food, 900 on an education of his children, 1,200 on other things, and save the rest. Draw the pie chart. देखो यहाँ पे पाई चार्ट के बारे में रिप्रेजेंट करना है. पाई चार्ट बहुत ही सिंपल है. पाई चार्ट में सबसे पहले यहाँ पे ईच एंड एवरी नेम ऑफ द आइटम्स एक बॉक्स में लिख लेंगे. जैसे कि यहाँ पे रेंट से लेके सेविंग तक की सारी मैंने मेंशन कर दी है. फिर क्या होगा, फिर होगा एक्सपेंडिचर जो गिवन है 1,800 रुपीज वो रेंट है, यानी कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा टोटल कर दूंगा कि टोटल एक्सपेंड कितना है, यानी कि 1,800 रेंट पे खर्च कर रहा है, फूड पे 2,700, एजुकेशन पे 900, अदर्स उसके कुछ 1,200 है और 600 सेविंग है. सबका टोटल हो रहा है मेरा 7,200. यानी कि जब मैं इसके एंगल्स पाई चार्ट में काउंट करूंगा तो 1,800 सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ रेंट से, तो रेंट का 1,800 है अपॉन टोटल कितना है 7,200 इनटू द 360, यानी कि यहाँ पे 2 zeros दैट विल बी द कट. 18 4 72, तो 4 से कट हो रहा है एंड 4 90 था, यानी कि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री रेंट पे होगा. वैसे ही हम लोग ईच एंड एवरीथिंग काउंट कर पाएंगे. 2,700 अपॉन 7,200 इंटू 360. ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं चेक कर पा रहा हूँ कि मुझे 135 एंगल मिल रहा है. सो सारे के सारे एंगल्स एक बार हम लोग काउंट कर लेंगे. सबका एडिशन याद रखना ऑलवेज 360 होगा, सबका एडिशन ऑलवेज 360 होगा. एंड देन हम लोग बाय यूजिंग पाई चार्ट एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे और सर्कल में जो भी एंगल्स है
वो अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें मेंशन कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि रेंट के 90 एंगल्स मुझे मिल रहा है, फूड का थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा है 135, एजुकेशन 45, सेविंग का सबसे कम 30 डिग्री है, एंड अदर दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, सो जैसे कि हमने बार ग्राफ देखा, वैसे ही यहाँ पे पाई चार्ट से भी हम लोग बाय यूजिंग द सर्कल से कर सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स obtained in a different subject by the Ashok Sharma in an examinations are the given below। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि इसको इंग्लिश में 85 मार्क्स है, हिंदी में 60 है, मैथ्स में 35, साइंस 50 एंड सोशल साइंस में 70। सेम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वाई एक्सिस में मैं यहाँ पे सारे के सारे मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 0 से लेके 90 तक मैं यहाँ पे इंटरवल बना रहा हूँ। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इंग्लिश है मेरा 85 जो हो जाएगा मेरा 80 और 90 के बीच में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 85 जो है, ठीक है, तो 85 जो है वो 80 और 90 के बीच में है। इफ आई टॉकिंग अबाउट इन हिंदी, हिंदी यहाँ पे मेरा 60 मार्क्स है। ठीक है, 35 मेरे मैथ्स में है, यानी कि वो 30 एंड 40 के बीच में आ जाएंगे 35। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही इसको पूरा बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्केट पोजीशंस ऑफ द डिफरेंट ब्रांड ऑफ द लीव्स। ए से लेके डी तक है और अदर्स है। सो ड्रॉ इट द पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन। पाई चार्ट है और परसेंटेज में गिवन है। जैसे कि परसेंटेज का इक्वेशन हम लोगों ने देखा था कि जब भी परसेंटेज आए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि फर्स्ट ए चार्ट नेम ऑफ द ब्रांड ए 35 है, 35 इंटू द 360 कर देंगे अपॉन 100, यानी कि 35 इंटू 360 होगा, अपॉन जब 100 करेंगे वी विल गेट इट 126 डिग्री। अगर नंबर बी की बात करूं 20 इंटू 360 अपॉन 100 दैट इज 72। ईच एंड एवरीथिंग हम लोग काउंट हो जाने के बाद देखो यहाँ पे अपॉन 100 क्यों आया है, अपॉन 100 इसलिए आया है कि जो भी ब्रांड है हमारे पास ए बी सी डी और अदर्स है, वो सभी ब्रांड का एडिशन हम जब करते हैं, यानी कि 35 35 20 20 15 और 10, ये सब का एडिशन मेरा 100 आ रहा है। दैट द रीजन बिहाइंड दिस हम लोग यहाँ पे ईच एंड एवरी टाइम अपॉन 100 करते हैं, और जब भी परसेंटेज आए अपॉन ऑलवेज 100 ही होगा। ठीक है, सो दैट मीन्स सबका मुझे एंगल्स मिल चुका है, एंड देन बाय यूजिंग द पाई चार्ट एक सर्कल से, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ए का 126 डिग्री है तो वो थोड़ा सा पोर्शन ज्यादा होगा, बी एंड सी 70 72 है, डी 54 है एंड 36 पर एंगल है जो अदर्स का है। Next question, number 5. Students of the small school use the different modes of the travel to a school as shown in below। यहाँ पे देख पा रहे हो कि बाय यूजिंग द बस से 142 आ रहे हैं, कार से 98 आ रहे हैं, बाइसिकल से 50, ऑटो से 34 एंड बाय यूजिंग फुट से 16 आ रहे हैं। इसको बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है और बहुत ही इजीली, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ये क्वाइट सिमिलर ही है कि जैसे कि मैंने एक्स एक्सिस पे मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया है, और जो भी नंबर्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ड्रॉ द बार ग्राफ। ई से लेके एफ तक की वैल्यूज है। ठीक है, तो दैट मीन्स मैं ओ वाई पे सारे के सारे डेटास लिख रहा हूँ और ओ एक्स पे सारे के सारे ए टू लेके एफ तक के नेम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ए जो है मेरा 230 है, यानी कि 200 और 250 के बीच में आएगा। बी जो है मेरा 400 है, यानी कि वाई एक्सिस पे 400 तक आएगा। सी है मेरा 350 है, डी है 200, ई है 380 एंड लास्ट एफ जो है मेरा 160 है, जो 150 से 200 के बीच में आएगा। तो दैट मीन्स हम लोग बहुत ही इजीली, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और प्रॉपर स्केल से मेंटेन करना है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। Manoj appeared for the ICSE examinations 2018 and secured the percentage of the marks as shown in the following table। सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट गिवन है, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल स्टडीज, और डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज गिवन है। अगर 60% आ रहे हैं तो बार ग्राफ में सिंपली उसको
रिप्रेजेंट करना है। मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे सारे के सारे सब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ और वाई एक्सिस पे सारे के सारे मार्क्स जो परसेंट में गिवन है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि हिंदी में यहाँ पे 60 होंगे, इंग्लिश 45 दैट इज गिवन 45 यानी कि 40 से 50 के बीच में आएंगे, मैथ्स में 42 है जो 40 से 50 के बीच में आएंगे, साइंस दैट इज एन 48 एंड सोशल साइंस दैट इज अ 75। तो बहुत ही इजीली वे से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। फॉर द डेटा गिवन अबव इन क्वेश्चन नंबर 7, अगर सेम डेटा को यूज करके अगर पाई ग्राफ से आता तो सबसे पहले मुझे टोटल में कन्वर्ट करना पड़ता। यानी कि मैं जब सारे के सारे मार्क्स के टोटल्स काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैथ्स के, इंग्लिश के, हिंदी के, साइंस के और सोशल साइंस के, तो टोटल्स मुझे मिल रहे हैं 270। देन आफ्टर ईच एंड एवरी को एंगल में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि सेंट्रल एंगल फॉर द हिंदी, हिंदी के कितने मार्क्स है, हिंदी के मार्क्स है 60, यानी कि 60 अपॉन टोटल, यानी कि टोटल है मेरे 270, 60 अपॉन 270 into the 360, so that means we will get it the 80 angle. Then after all इंग्लिश में मेरे 45 मार्क्स है, so 45 अपॉन 270 into the 360 that is the 60 डिग्री मिल रहा है। सो मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं, 42 अपॉन टोटल यानी कि 270 into 360 that is the 45। सो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स के ऐसे हम लोग सेंट्रल एंगल फाइंड कर पाएंगे। एंड देन आफ्टर ऑल पाई चार्ट में हम लोग जैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग द सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करके। सबसे पहले जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि 100 डिग्री सबसे ज्यादा सोशल स्टडी का होगा, देन 80 डिग्री होगा सबसे ज्यादा पोर्शन हिंदी का, एंड देन फिर साइंस 64, देन फिर इंग्लिश 60 पोर्शन एंड लास्ट मैथ्स 56%। ठीक है, तो एक ही डेटा को दो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन 7 में बाय यूजिंग द बार ग्राफ से रिप्रेजेंट किया, और क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों ने वही क्वेश्चन को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट किया। सो आई होप कि बहुत अच्छा सा आपको अब क्लियरली समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर कपूर compares the price of the different items at the two different shops A and B, टू डिफरेंट शॉप पे टू डिफरेंट प्राइस को कंपेयर कर रहा है मिस्टर कपूर, and then examine the following tables carefully and represent the data by the double bar graph। देखो यहाँ पे एक आइटम्स है, फिर उसकी प्राइस कंपेयर हो रही है ए और बी में, और उसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो एक ही चार्ट में दो बार ग्राफ एक साथ हम लोग लिख पाएंगे। जैसे कि एक्स पे मैं सारे के सारे आइटम्स लिख रहा हूँ और वाई में सारे के सारे कॉस्ट लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि टी सेट की जो प्राइस ए में 900 है और बी में 950 है, यानी कि जो ई का चार्ट जाएगा, ठीक है, टी सेट का वो 900 तक होगा और बी का होगा 950 तक। ठीक है, सो दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे बाय यूजिंग द बार ग्राफ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बहुत ही सिंपल वे से दोनों ए और बी शॉप की प्राइस एक ही चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो हाईलाइट करके है, ठीक है, वो सारे के सारे बी की है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे, और जो सिंपल है वो ए शॉप की है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे स्टैटिस्टिकली रिप्रेजेंट ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने यहाँ पे किया है। तो देखो स्टूडेंट्स, जनरली एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, आप आराम से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू सो मच।